Bismillahirrahmanirrahim. Once again, example 10.1. Yes, we were in this example, and we have to complete this example. इसमें देखें ये सारी चीजें पूछी गई थी. Find this stat. And if you have any question, you may ask now. It's good time. So yeah, I have written all these things, but I did explain verbally to you. I did not read these things, but you need to read and understand it. This will make easy understanding of this topic. If you go through this one, for example, I have written ISCR, current through the SCR1, only current exists if SCR is 1 is on. That's simple. It's this clarifies, this makes this make you comfortable to draw the waveform if you have these facts in your mind. So this we have done this, and now the output waveform, we have completed the output waveform, and it's said that the average across the voltage across the open switch is 2 supply voltage. Yes, 2 multiplied by 100. ठीक है. The voltage across open switch is this one, and the average load voltage. अब आपको average load voltage निकालना है over a half cycle is 200 divided by 0.5. Yes. Average voltage आपको 100 मिले हैं. The average load current कितना होगा? 100 है. V average divided by R, and average current in the switch 100 divided by 50 ampere. So the RMS value of the output voltage is, we can calculate using the simple basic equation, square root 2 or K multiplied by square root 2. So the duty cycle is 0.5, voltage is 100. If you want to calculate the power delivered to the load is PL, load power. PL is equal to VI, VLIL, and here VL is VL basically this one, 100 volt, and IL is basically this one, 100, but both are having the same. So I just make a disorder. Okay, so if you multiply these two values, you will end up with 10 kilowatt of output load. So it's originally it's a 10 kilowatt. It means it's really a very heavy load. This now next is figure 10.5, full bridge voltage source inverter. Nice time to understand. Just start. Just to this is just copy from the Ashfaq Ahmed. So this is the full bridge. Is a full bridge voltage source inverter because the voltage is the feeding supply. The voltage is not the current source, the voltage source. So it's a voltage source inverter. And why it is full bridge? Because we have S1, S2, S3, and S4. Normally, the switch nomenclatures are this way. We make first this one S1, then this S2, then this S3, and then S4. But I don't know why the Ashfaq Ahmed this. It's okay. Anything can be given to you in the examination.
and by having this circuit, you have to draw the voltage waveform and the current waveform. And in this case, this is the table given to you. Because we are using 4 switches, S1, S2, S3, S4. So according to these switches, we have this table. So in state 1, switch S1 is on, and switch S4 is on. So in state 1, switch S1 is on and S4 is on. Means कहाँ S1? S1 ये है और S4 ये है, ये on होंगे. So how the current will flow? As I explained before, current किस तरह flow होगा? ये on है, so current will flow from here. I should draw this current. ये switch on है, ये आप यहाँ पे पहले से आप on कर लें. ये switch on है, इसे आपने on कर लिया, पेंसिल से आप इसे on कर लें. And now you can draw the current path. So current path will be from this one, यहाँ से load से होते हुए, and then यहाँ से होते हुए. So this is the current waveform. What is next? I don't know what is next. Let's see. Oh, so we have to draw the output voltage waveform, because this table switching sequence for a square wave output. If you use this table, we will end up with this square wave, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी duration नहीं है, ऐसी time नहीं है whenever all the devices are off. बल्कि क्या है यहाँ पर? इस केस में ये 2 ऑन है, इस केस में 2 ऑन है, इस केस में भी 2 ऑन है, इस केस में भी 2 ऑन है. So we will end up with square wave, this output. अगर कहीं पर सब 0 हो जाएंगे, तो we will end up with the step wave or quasi square wave. तो ये आपको बहुत आसान है, आपने ड्रॉ कर लिया. And now you have to understand this value basically. This is important, because this example involves operation of the 4 switches. तो जब switch state 1 में switch S1 on है और S4 on है, तो आप ये देखें यहाँ पर आपने इस वेव फॉर्म में अपने S1 और S4 लिख दिया. नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो रहा है? नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेक्स्ट हाफ साइकिल है. इसमें क्या है? स्विच कौन से ऑन है? S2 ऑन है और S3 ऑन है. सो मेक these switches on, S2 और S3. कहाँ S2 ये से आपने ऑन कर दिया. S3 कहाँ? S3 ये. Remember, always the diagonal switches will work together. अगर ये ऑन है तो ये ऑन होगा, ये ऑन है तो ये diagonal switches. Okay. So now you can make the current path. इसमें current path कैसे बनेगा? ये switch on है, तो if we start from minus, ये आ गया. So of course in this case this side will be opposite, so we have this one. तो इस second state में कौन से switches operate हुए? S2 और S3. That's why we have written S2 and S3. This is copy from the textbook.
and then again the S1, S4. So in this example, we have shown you how the full bridge inverter circuit behaves and how their switches will work together. So in this circuit, we have seen for the full bridge circuit, for the full bridge inverter, the two diagonal switches must have operated at the same time. Okay, and we get this output voltage. अगर ये टेबल है, let's see another switching sequence square wave output, switching sequence step wave output. अच्छा, अब इसमें where is the table? I think I forgot to draw the table. इसमें अगर आप बुक में देखेंगे तो you will find 10.2, 10.3, table 10.3. तो इसमें अगर आप तो आपने ये देखा कि इन दोनों के बाद एक पॉज दिया गया है. And again we have this pause. So if we end up with such a square wave, so this will be the result of the table 10.3 or 10. I think 10.3. 10.3 की टेबल में अगर आप वेट करें तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर. Okay, leave this one, and you should draw this thing by yourself from the book, of course, from the book. तो ये तो हो गई बात इन्वर्टर्स की. अब अगेन मैंने फिर यहाँ पर क्या किया, मैंने अगेन ऑपरेशन ऑफ हाफ एच ब्रिज इन्वर्टर विद रेजिस्टिव लोड. I think I did it again. This is just repetition of the slide. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. ये मैं बता चुका हूँ ना आप लोगों को. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Okay. Why I represent it here? Again, I think my point is कि मैं compare कर सकूं कि when the load is R, so we will have this kind of waveform having this circuit operation. Now it's time to understand the operation of the circuit and the waveform formation when the load is RL. Please pay attention. This is really very important. This is the heart of this course. अगर आप लोगों ने ये चीजें नहीं समझी तो शायद अगर चलें मैं नेगेटिव छोड़ देते हैं, पॉजिटिव की बात करते हैं. अगर आपने ये नेक्स्ट जो आपको बता रहा हूँ ना, अगर ये आपने समझ ली तो आप आई विल से आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स अच्छी तरह समझ गया. So this is so much important. So that's why I have shown this graph once again. In this graph, the point is that because the load was resistor, is a resistive load, so the voltage waveform and the current. अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने चेंज किया है, इसको ना मैंने बराबर में कर दिया है. So this is the voltage across the resistor. ये इसकी और this is the current through the resistor. So voltage waveform or current waveform absolutely in phase है, in sequence है, synchronized है, start at the same time, end at the same time. Now it's time to understand the RL load. Now this is the RL load और इसकी ग्राफ को आपको बहुत अच्छी तरह समझना है. आप क्या करेंगे? As I said before, the inverter is just simple inverter. आपने ये स्विच लगा दिया बस, और इस स्विच के क्रॉस आपने फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा दिया. एंड नाउ यू विल सी इन दिस केस कि हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस फ्री व्हीलिंग डायोड. अब आपको सही से समझ आएगा. तो अब आप क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल. ये आपके पास इन्वर्टर है एज वी हैव शोन बिफोर.
and now you have to connect the RL load. आपने एक resistor और इंडक्टर, नॉर्मली लोड जो है ना वो प्योर इंडक्टिव लोड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप इंडक्टर बना रहे होते हैं तो वो नंबर ऑफ टर्न्स आप होते हैं, 100 है, थाउजेंड्स है नंबर ऑफ टर्न्स, 500 है, 200 है, तो इंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस भी होती है, तो प्रैक्टिकली यू कांट फाइंड प्योर इंडक्टर, ठीक है। So you all whenever you will have inductor, it's always associated with its internal resistance. Sometimes we place the external resistance as well. लेकिन अगर आप external resistance नहीं भी लगा रहे तो भी we have internal resistance. So normally this kind of configuration is widely used when the load is RL, means resistor and inductor. Let's see. Now we connected load with RL. Now we have said C. कुछ चीजें मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि maybe I will skip some important points here. RL load is connected with a half bridge inverter. This is a half bridge inverter. The current will lag when the load is inductive. Okay, it's inductive load. So inductor क्या करता है, current को change, it opposes in the change, it opposes the change in the current. ये अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो वो इंडक्टर विल नॉट जंप फ्रॉम 10 to 20 एम्पियर, बट इट विल अपोज. सो इस अपोजिशन की वजह से करंट स्लोली एंड ग्रेजुअली रैंप अप होता है. इफ द करंट इज 0 एम्पियर, रेजिस्टर होगा 0 से 10 एम्पियर पे करंट जस्ट जंप कर जाएगा. बट इफ यू हैव इंडक्टिव लोड, it will not allow you immediately to jump the current from 0 ampere to 100 ampere. It will allow you slowly and gradually. That's why we always have a ramp function in the current. See how it is. So the waveform would be different. इसका मतलब है कि यहाँ पर waveform different होगा. The damping current, you will see what is the damping current will pass through the feedback. And this says that कि कुछ करंट जो है ना ये आपके ट्रांजिस्टर से पास होंगे एंड कुछ करंट इस डायोड के थ्रू भी पास होंगे. So this whenever the current will flow through the diode, that is known as the damping current. Okay, the waveform would be different because the inductor resists the change in flow of current. Okay, waveform of the circuit. The waveform can be drawn in four steps. अगर लोग सो रहे हैं तो उठ जाएं. This is important slide. The waveform can be drawn in 4 steps: T1, T2, T3, T4. Okay, we will see it. If S1 on, ये कह रहे जब S1 on होगा, current flows from supply to the load to S1. ठीक है, जब S1 on होगा तो करंट कहाँ से, ये सप्लाई, सोर्स ऑफ सप्लाई, ये करंट यहाँ से फ्लो होगा स्विच S1 से और लोड पे जाएगा. That is simple. We have seen many times it. So this is nothing special. If S1 is on, current flows from supply to the load through S1. That's good. So जब ऐसा होगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा तो यहाँ पर वोल्टेज कितने हो जाएंगे, ये VS जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वही VS/2, यही VS/2 हो जाएगा. अगर ये 200 वोल्ट है और ये 100 वोल्ट है तो यहाँ पर 100 वोल्ट प्लस में आ जाएंगे. So this says that plus VS/2 voltage will appear across the load and current will gradually. यहाँ पर वोल्टेज तो अपेयर हो जाएंगे, जैसे ही आपने इसे ऑन किया वोल्टेज immediately will become VS/2. क्या करंट भी हो जाएंगे? नहीं, करंट स्लोली इंक्रीज करेगा. दिस इज द पॉइंट एक्सप्लेन्ड हियर. The plus VS/2 voltage will appear immediately across the load and current will gradually increase from 0 to the max. At the same time, the inductor will also store the energy. What it says कि जब आप कह रहे हैं कि when the switch is on, तो आप ये भी कह रहे हैं कि करंट ये फ्लो हो रहा है यहाँ पर से. जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है चूंकि दिस लोड इज हैविंग इंडक्टिव पार्ट, सो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी.
in the form of the voltage, in the form of the voltage. अगर ये Vs upon 2 voltage है तो probably at the end of the cycle यहाँ पर भी Vs upon 2 अगर ये 100 volt है तो probably यहाँ पर भी 100 voltage energy save हो जाए, right? So at the same time the inductor will also store energy. जैसे जैसे current flow हो रहा है वैसे वैसे inductor भी energy store कर रही है. And the operation is simple. This one is on, this one is off. The current will flow in this direction as I have shown you before. करंट ऐसे ही फ्लो होगा प्लस से ये यहाँ तक हम लोग आ गए, ठीक है ना. और इसकी वजह से जो वोल्टेज होंगे, अच्छा इसी तरह से जब अपोजिट ऑपरेशन होगा ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा, तो ये ऑफ हो गया ये ऑन हो गया. इस सूरत में करंट की डायरेक्शन कहाँ से है ये आप देखें. करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू दी S2, दिस इज इंपॉर्टेंट, बल्कि करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, D2 से फ्लो हो रहा है. इन रेजिस्टिव सर्किट में वी हैव सीन when the load was a resistor, जब ये ऑन होगा करंट इस तरह ऑन थ्रू S1 से फ्लो होगा, और जब ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा तो करंट S2 से ही फ्लो होगा. But in this case you can see the current is not flowing through the S2 but it's flowing through the diode. That we need to understand here. अच्छा अब ये थोड़ा सा बता दूं क्यों ऐसा है. ऐसा इसलिए है कि जैसे we have discussed कि while flowing the current this will also store energy. जब ये एंड साइकिल आ जाएगा S1 के ऑन होने का एंड पॉइंट आएगा तो टिल दैट पॉइंट इसने एनर्जी स्टोर किया हुआ होगा, ठीक है. जैसे आपने इस स्विच को ऑफ कर दिया, आपने क्या किया देखें, इस स्विच को ऑफ कर दिया, अब ये जो करंट फ्लो हो रहा था वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा. लेट्स सपोज लास्ट मोमेंट पे 10 एम्पियर करंट वाज फ्लोइंग, 0 से 10 एम्पियर करंट, इस पूरे ऑन साइकिल में 0 से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था. अब जैसे ही आपने इसको ऑफ कर दिया तो ये जो 10 एम्पियर करंट है ये इमीडिएटली स्टॉप नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि इट हैज एनर्जी इनसाइड एंड दिस वांट्स टू रिलीज दिस एनर्जी. और जब जैसे आप इसे ऑफ करेंगे, जैसे आप इसे ऑफ करेंगे तो ये जो करंट फ्लो हो रहा था वो जो एनर्जाइज कर रहा था करंट वो रुक जाएगा. ऑफ क्या, एनर्जाइज करंट रुक गया. लेकिन अब इट हैज टू डी एनर्जाइज. पहले एनर्जाइज हुआ था इस साइकिल में, अब आपने सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये डी एनर्जाइज होगा. अब ये जो भी एनर्जी इसने स्टोर की है क्रॉस इट that must have to be released by the inductor. तो रिलीज जैसे इस अब ये एक सोर्स ऑफ सप्लाई बन जाएगा और जैसे ये डीएनर्जाइज करना शुरू हो जाएगा इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी. एंड यू कैन सी हियर इसकी पोलैरिटी क्या हो गई है, माइनस प्लस से माइनस हो गई है, एंड माइनस से प्लस. क्यों, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब ये एनर्जाइज हो रहा था तो इसकी ये पोलैरिटी ये थी. अब ये डिस्कनेक्ट कर दिया हमने सप्लाई को बाय टर्निंग ऑफ द S1 स्विच. S1 स्विच आपने ऑफ कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि S1 स्विच आपने ऑफ कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि अब ये एनर्जाइज नहीं हो रहा, अब ये डी एनर्जाइज होगा. जब इट विल स्टार्ट डी एनर्जाइजिंग द रिवर्स पोलैरिटी, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस. अब ये कंडीशन आ गई है. एट दैट मोमेंट आप सिर्फ इस मोमेंट के लिए आप वेट करें कि आपने अभी सिर्फ S1 को ऑफ किया है. S2 की बात मैं नहीं कर रहा अभी. जाहिर सी बात है जब आपने S1 को ऑफ का सिग्नल दिया तो आपने S2 को ऑन का सिग्नल दिया. Although S2 has on signal but it will not turn on. This is the important. क्यों नहीं टर्न ऑन होगा, इसलिए कि जो एनर्जी यहाँ स्टोर हुई थी अब ये एनर्जी यहाँ रिलीज होगी. सो नाउ वी हैव टू सोर्स ऑफ सप्लाई. एक सोर्स ऑफ सप्लाई ये हो गई
और दूसरी इस लूप में एक सोर्स ऑफ सप्लाई ये हो गई और दूसरी सोर्स ऑफ सप्लाई ये है. वी हैव टू सोर्स ऑफ सप्लाई. One is temporary and the other is the permanent. ये परमानेंट, लेट्स सपोज इन टर्म्स ऑफ अगर हम वोल्टेज की बात करें तो ये 100 वोल्ट है, तो यहाँ पर 100 वोल्ट इस पोलैरिटी के साथ स्टोर हो गई है. पहले ये 100 वोल्ट डिक्रीज होंगे क्योंकि इट हैज टू डी एनर्जाइज. इस तरह डिक्रीज होंगे. अब क्या होगा फंक्शन? अब आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर 100 वोल्ट है ना. लेट मी मेक इट 100 वोल्ट. असेंबली 100 वोल्ट है, ठीक है. अब यहाँ पर भी 100 वोल्ट है. अब लेकिन ये जो 100 वोल्ट है ये इसकी माइनस यहाँ पर है, तो ये माइनस क्या करेगा? क्या ये माइनस इस तरफ करंट फ्लो करेगा? नहीं. इस वोल्टेज की वजह से विल द करंट फ्लो थ्रू डायोड? नहीं, क्योंकि डायोड रिवर्स बायस है. क्या ये इस माइनस वोल्टेज -100 की वोल्टेज की वजह से क्या ये स्विच के करंट फ्लो होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्विच है, ये स्विच हमने ऑफ कर दिया है, ठीक है. अब ओनली द पाथ इट विल फाइंड. क्या ये माइनस है? क्या ये माइनस यहाँ से करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसे कलेक्टर है, कलेक्टर पे आपको पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ये ऑन होगा. तो करंट इस तरह भी फ्लो नहीं होगा. फिर करंट कहाँ से फ्लो होगा? द करंट विल हैव फाइंड दिस पाथ. ये डायोड का पाथ यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, तो it will make this diode forward bias. So what will happen overall if we start from plus supply से अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो करंट will flow from plus back. तो चूंकि ये टेम्पररी सप्लाई है, यहाँ पर इसकी प्लस वोल्टेज है. आप अगर यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट करेंगे, करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस वन टू दिस वन एंड द करंट इज फ्लोइंग. क्या पहले जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी डायरेक्शन और अभी जो करंट फ्लो हो रहा है लोड के थ्रू, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है या नहीं है? बताएं मुझे. सर सेम नहीं है सर. सेम नहीं है. और कोई बताएं. करंट थ्रू द लोड, करंट की डायरेक्शन सेम लग रही है. सेम लग रही है. दैट्स करेक्ट आंसर. क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले मैं बहुत सारी चीजें क्यों आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ कि मैंने बताया था कि लोड है, इसका टर्मिनल T1 है, टर्मिनल T2 है. टेक T1 एज अ रेफरेंस, ठीक है ना. या आप ये भी कर सकते हैं, करंट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर करंट इस, देखिए करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और करंट is entering at terminal T1 and it's coming out from terminal T2. और you can say current की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है? right to left है. current is सॉरी यार उल्टा सीधा बना देता हूँ मैं. करंट is यहाँ से करंट राइट टू लेफ्ट को मूव कर रहा है. इस जगह करंट देखें क्या मूव हो रहा है. इस जगह करंट देखें, ये तो हमने डायरेक्शन से ही बनाई है क्योंकि दिस इज सोर्स ऑफ सप्लाई. तो करंट यहाँ पर भी आप ये देखें, सॉरी अगेन, राइट टू लेफ्ट. करंट की डायरेक्शन किस तरफ? इस तरफ है ना. सो इट्स अगेन राइट टू लेफ्ट. सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम. दिस इज इंपॉर्टेंट. सही है? इज इट ओके? यस सर. तो इस दोनों कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ द करंट सेम है. सर आपने जो एक करंट बताई, एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर आपने जो एक रीजन बताया था कि S2 से पास क्यों नहीं होगा, क्योंकि कलेक्टर की वजह से. सर आपने कलेक्टर की कोई रीजन बताया था कि क्यों नहीं होगा पास, वो रिपीट कर देंगे. S2 से क्यों नहीं पास होगा आपने ये बताया. अच्छा. यस, देखिए S2 एक ट्रांजिस्टर है. इट्स जस्ट ट्रांजिस्टर. यहाँ पे कलेक्टर है, ये IGBT है ना. यहाँ पे कलेक्टर है, यहाँ पर एमिटर है. ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए कलेक्टर पे तो प्लस सप्लाई देना होता है ना. यस सर. तो ये तो टेम्पररी जो सप्लाई डेवलप हुई है, ये इसके यहाँ पर माइनस है, तो ये इसको ऑन नहीं करेगा ना. Although you have provided the signal to the S2, यहाँ पर आपने S1 के सिग्नल को ऑन किया था
अब S1 के सिग्नल को ऑफ किया और आपने S2 के सिग्नल को ऑन किया है। Although you have provided this gate signal at the S2, लेकिन S2 ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं ऑन होगा? Because of this temporary voltage, this temporary, this is releasing its energy by creating, by making this terminal negative. तो ये जब टर्मिनल नेगेटिव हो गया तो ये करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्टर है। कलेक्टर को तो पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए भाई तब ऑन होगा। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर ये क्यों ऑन हुआ था, ये IGBT, क्योंकि ये कलेक्टर थे और कलेक्टर पे कितने वोल्टेज था, प्लस था, इस वजह से ऑन हो गया। समझ गए? इज इट ओके? यस सर। अच्छा, गुड। तो अच्छा, अब हमने दो चीजें पढ़ ली अब तक कि during energization S1 will remain on, the current will flow through S1 and the direction of the current is from right to left. But जैसे ही ये switch off हो जाएगा, this has to de-energize, and in order to de-energize, इसकी जो polarity है that will change, प्लस माइनस हो जाएगा। एंड बिकॉज वी आर एस्यूमिंग कि यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हुई है बहुत ज्यादा स्टोर हो गई, लेट सपोज जो सप्लाई की वोल्टेज थी वो 100 वोल्ट यहाँ पे स्टोर हो गई है। सो अब क्या होगा, ये 100 वोल्ट इज बेसिकली विल हैव दिस पोलैरिटी। अब ये करंट यहाँ से भी नहीं जा सकता, ये तो ऑफ है, यहाँ से भी नहीं जा सकता, करंट विल हैव ओनली दिस पाथ। चूंकि ये नेगेटिव कैथोड के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, कैथोड के साथ कनेक्टेड है, तो ऑफ कोर्स दिस विल मेक दिस डायोड पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस। या आप अदर वे अराउंड ये समझ सकते हैं, चूंकि ये प्लस 100 वोल्ट सप्लाई एक आ गई है तो ये यहाँ पे प्लस वोल्टेज है, तो दिस प्लस, ये प्लस करंट यूं फ्लो होगा इस तरह आ करके। सो बेसिकली जो करंट रिलीज हो रही है is releasing by this electromagnetic field, by this inductor। अब वो करंट कहाँ इंजेक्ट हो रही है भाई, ये तो खुद लोड है ना, लोड के थ्रू करंट वापस जा रही है, लेकिन जो करंट जा रही है वो कहाँ जा रही है, इट्स गोइंग बैक टू दिस सोर्स ऑफ द सप्लाई। अब ये सोर्स को भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर इंडक्टर चार्ज होने के लिए, एनर्जाइज होने के लिए इसने सोर्स जो सप्लाई थी उससे एनर्जी ड्रॉ की है, खींची है, ड्रैग की है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हुई थी, द पार्ट ऑफ द एनर्जी इज गोइंग बैक टू इनसाइड द सप्लाई। ये सप्लाई में एनर्जी इंजेक्ट हो रही है और करंट इस तरह फ्लो करेगा। ओके, एनी क्वेश्चन? I must have to go now to क्या कोई मैसेज है? थैंक यू। सो नाउ अगर आपको ये समझ आ गया है तो अब आपको वेवफॉर्म ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। लेट्स ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। तो अगेन मैंने इसको T1, T2, T3 भी डिवाइड करते। दिस इज टाइम फॉर T1 when the switch is on and this is getting energized and the current flows from right to left. Okay, and this is time 2. This is time 2 when the switch is, this one is off, although we have provided the signal to this one, but this will not conduct because of this electromagnetic energy stored across the load, and this will make this reverse bias. Only this forward bias, the current will flow through this one. Current कब तक flow होगा? Now the question is how long this current in this direction will continue to flow till this completely de-energizes। क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी है। जब ये एनर्जी देखें, ये एनर्जी और ये सप्लाई एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो जब ये जो 100 वोल्ट मैंने आपको 100 वोल्ट की शक्ल में बताया, आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज होना शुरू होगा, ये डीएनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा करंट, और जब जैसे जैसे डीएनर्जाइज होगा वैसे वैसे इस करंट की अमाउंट कम होने लगेगी, इस करंट की मैग्नीट्यूड कम होने लगेगी, एंड व्हेन दिस एनर्जी इज कंप्लीटली रिलीज तो ये करंट जीरो हो जाएगा। राइट, लेट्स टेक सम, ये देखें गेट 1 है, ये गेट का 1 किसका गेट है? S1, मतलब S1 का जो गेट है ना, G है, गेट G,
तो इसके जो गेट पे जो सिग्नल है वो G1 है, ठीक है, और इसके सिग्नल G2 है। आप यहाँ पे देखें G1 जब ऑन था तो G2 ऑफ है, G2 ऑफ ऑन है तो G1 is working in opposite. आउटपुट वोल्टेज ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज लोड। अच्छा, दिस इज लोड वोल्टेज। दिस ग्राफ हैज टू पैरामीटर्स, द वोल्टेज एंड द करंट। वोल्टेज कितने हैं, ये जो ब्लू वाले हैं ना, दिस इज वोल्टेज। जैसे ही ये G1 ऑन होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितने हो जाएंगे, मैंने बताया था, इमीडिएटली इट विल बी PS/2, जो सप्लाई वोल्टेज है वही यहाँ पर आ जाएंगे। तो दिस विल बी वोल्टेज वेवफॉर्म। और जब स्विच ऑफ हो गया है, ये स्विच ऑफ हो गया है, और सॉरी, हाँ, ये स्विच ऑफ हो गया और ये स्विच ऑन हो गया है, तो अब यहाँ पर जो वोल्टेज जो बनेंगे ना, ये देखें ऑलरेडी ये वोल्टेज नेगेटिव में बन जाएंगे। सो द वोल्टेज हैव दिस वेव फॉर्म, प्लस माइनस प्लस। आउटपुट विल बी स्क्वायर वेव। वोल्टेज आउटपुट में जो लोड में वोल्टेज होंगे स्क्वायर वेव बनेंगे, बट इट इज इन्वर्टिंग, सो द वोल्टेज इज AC इनपुट एज वी हैव सीन इन द रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड में भी वोल्टेज इन इस तरह से स्क्वायर वेव थे, ठीक है। नाउ द टाइम टू ड्रॉ द करंट वेव फॉर्म। जैसे ये make this, so the blue is for the voltage and red is for the current. Now I'm drawing the red. Let's suppose current यहाँ से start नहीं हो रहा है, यहाँ से start हो रहा है, just assume, मैं आपको explain कर दूंगा why it is this one. करंट यहाँ से स्टार्ट होगा तो करंट इमीडिएटली जंप नहीं करेगा, बल्कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल, तो करंट इज स्लोली रैम्प, एज वी हैव सीन इन मेनी अदर सर्किट्स। तो करंट इस तरह से फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंड द करंट किसके थ्रू फ्लो हो रही है, S1 के थ्रू फ्लो हो रहा है। अब जी बोले, कोई कुछ कहना चाह रहा है, मैं सिर्फ ये कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो अब ये क्या हो गया, इसमें इस पॉइंट पे क्या है कि S1 को तो आपने ऑफ कर दिया है, दिस इज ऑफ, और S2 को जी बोले, S2 को आपने ऑन किया है। जब S2 को ऑन किया है, ऑन मींस ऑन का आपने सिग्नल दे दिया है, लेकिन ये ऑन नहीं हुआ है। क्या हुआ है, करंट D2 से फ्लो हो रहा है, करंट D2 से फ्लो हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रही थी क्योंकि ये एनर्जाइज हो रहा था, यहाँ पर करंट डिक्रीज होगी क्योंकि ये डी एनर्जाइज हो रहा है, तो करंट इज गोइंग टू डिक्रीज। कब तक डिक्रीज होती रहेगी, जब इसमें जो एनर्जी स्टोर है वो जीरो हो जाएंगे। जब एनर्जी जीरो हो जाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज जीरो। अब कौन सा वोल्टेज सोर्स रह गया, सिर्फ और सिर्फ ये वोल्टेज सोर्स है। अब इस वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज यहाँ पर जीरो हो गए, यहाँ पर वोल्टेज ये है। अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, देखें, अब ये वोल्टेज जीरो है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है। तो अब इस प्लस की वजह से करंट किस तरह फ्लो होगा, यहां से करंट जाएगा, और ये अब करंट S2 से फ्लो होगा, D2 से नहीं होगा क्योंकि दिस इज रिवर्स बायस। अब करंट सिर्फ S2 से फ्लो होगा, तो करंट डायरेक्शन विल बी दिस वन। तो अब करंट की डायरेक्शन यहाँ पर रिवर्स हो गई है, माइनस में हो गई है। देखें, पहले यहाँ पर करंट राइट टू लेफ्ट था, राइट टू लेफ्ट था, अब करंट यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हो गया। सो द करंट वेवफॉर्म विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन। और अब करंट किससे फ्लो हो रहा है, किस थ्रू, S2 के थ्रू फ्लो हो रहा है। So we have this S2. The things will continue. इसके बाद क्या हो गया, देखें, लास्ट I'm getting over time. तो अब क्या है यहाँ पर, ये सॉरी, ये G2 कहीं से आ गया, we have to remove this one. Okay. So तो मैं आपसे क्या कह रहा था, अच्छा, अब यहाँ पर इस टाइम पे करंट S2 पे इंक्रीज हो रहा है, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। व्हाई इट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ये इसके क्रॉस वोल्टेज तो जीरो हो गए, एनर्जी जीरो हो गई, ये इसने रीएनर्जाइज कर दिया। अब ये करंट फ्लो हो रहा है, तो दिस इज causing the flow of the current through the S2, and as well as this negative current is energizing this inductor once again, but energizing in the reverse direction. क्या होगा, अब ये एनर्जाइज कर रहा है, यहाँ पर प्लस
यहाँ पर एनर्जाइज इस डायरेक्शन में हुआ था, अब एनर्जाइज रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो करंट विल हैव दिस, ये इसे एनर्जाइज कर रहा है। एट जब व्हेन S2 ऑफ हो जाएगा, वी assume के दिस वन इज कंप्लीटली एनर्जाइज। जब S2 ऑफ हो जाएगा, ये S2 ऑफ हो गया, अब ये जो एनर्जाइज हुआ था वो यहाँ से डी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा। एंड हाउ इट विल वर्क, अब डी एनर्जाइज के बाद इसकी पोलैरिटी फिर चेंज हो जाएगी, ये माइनस प्लस था, अब चूंकि डी एनर्जाइज हो रहा है तो प्लस माइनस हो जाएगा। और करंट की डायरेक्शन देखें यहाँ पर, इन दोनों चीजों को गौर करें, जब ये प्लस माइनस हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा वोल्टेज आ गए हैं, एंड दिस एक्स्ट्रा वोल्टेज विल मेक दिस एक्स्ट्रा वोल्टेज किसके थ्रू पास होंगे, क्या इससे पास होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये एमीटर है, कलेक्टर में प्लस देना होता है हमें, ये एमीटर है, एमीटर पे हम प्लस दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सो द करंट विल पास थ्रू दिस डायोड D1, लेट्स सी किस तरह पास कर रहा है, ये पास करेगा एंड डायोड D1, और जब ये कंप्लीटली डी एनर्जाइज हो जाएगा तो करंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। डी एनर्जाइज होने का, और करंट किसके थ्रू पास हो रहा है, D1, व्हेन इट डी एनर्जाइजेस तो अगेन वी विल रीच टू दिस पोजीशन, S1 completely on होगा, and this will start to energize this again in the positive direction. So the things will continue. अभी S1 से देखें ये हो रहा है, things will continue. So please try to understand these graph, this waveform carefully, and in the next lecture. So this is the time. Okay, I forgot to tell you कि यहाँ पे मैंने ये स्टार्ट किया था, यहाँ से क्यों स्टार्ट किया था कि उस वक्त मुझे क्लियर नहीं था कि मैं आपको बताऊं नहीं बताऊं, लेकिन जब आपने इसे कंप्लीट किया तो करंट इस तरह S1 से D2, D2 से फिर S2, S2 से फिर D1, करंट की जो ट्रेंड वो ऐसे है, ठीक है ना। एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब है करंट यहाँ से हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, इसकी जो प्रीवियस करंट डायरेक्शन है वो कौन सी है, ये वाली है, तो इस वजह से यहाँ पर भी करंट इसी डायरेक्शन में, करंट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, that like we are making complete. Okay, class is over. If you have any question, you can ask. Otherwise, I have to stop.